Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, today our topic is classification of organic compounds. Class, if we talk about the classification of organic compounds, we classify the organic molecules into two main classes. First class is hydrocarbons and the second class is other classes of the organic molecules. Hydrocarbons Hydrocarbons are the organic compounds that are made up of or that are composed of just carbon and hydrogen. The word hydro means hydrogen and carbons mean carbon. It means hydrocarbons are the organic compounds that are composed of carbon and hydrogen only. हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जबकि बाकी एटम्स नहीं होते। और हाइड्रोकार्बन्स को भी हम तीन क्लासेस में नेक्स्ट जो है वो क्लासिफाई करते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। ये बातें बेटा मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में जो कि हमारा लेक्चर था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो दूसरी क्लास है हमारे पास वो है अदर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप्स की बात की है और हमने देखा है कि जैसा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल है, तो जो भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा तो उसकी क्लास के लिहाज से हम ये कहते हैं कि अदर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Organic compounds constitute about 90% of all compounds. Depending upon the arrangement of carbon atoms in their structure, organic compounds are broadly categorized or classified into the following compounds. First one is acyclic or open chain compounds, and second is cyclic or closed chain compounds. Plus, we can say that organic compounds are classified in the order of the arrangement of the carbon atoms in their structures. कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम उनमें जो कार्बन एटम्स हैं उसकी अरेंजमेंट के लिहाज से डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं और उनको कैटेगराइज करते हैं। प्लस हियर इज flow sheet diagram of the classification of organic compounds. First of all, we talk about organic compounds can be classified into main two classes. First class is open chain compounds and second class is cyclic compounds. And if we talk about open chain compounds is further divided into two main classes. First class is straight chain compounds and the second class of open chain compound is branch chain compounds. And if we talk about cyclic compounds is further divided into the homocyclic compounds and heterocyclic compounds. And if we talk about the homocyclic compounds, it is also further subdivided into two main classes, alicyclic compounds and aromatic compounds. क्लास नेक्स्ट हम इन तमाम क्लासेस को जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है इनकी हम डिटेल देखेंगे और इनकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। Class, now we will discuss the first class of organic compound in which it is classified is acyclic or open chain compounds. acyclic जैसा कि उसके नेम से जाहिर है, ए मीन होता है विदाउट, ए मीन विदाउट एंड साइक्लिक मीन एक साइकिल स्ट्रक्चर, यानी साइक्लिक मीन होता है कि कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर साइकिल्स बनाते हैं या रिंग्स बनाते हैं। तो ए साइक्लिक का मीन यहाँ पर ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर या साइकिल नहीं होगा। तो जब साइकिल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर वो क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड्स। तो हम ओपन चेन कंपाउंड को किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन ओपन चेन, के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके जो कार्बन एटम्स हैं वो ओपन चेन्स बनाते हैं। These compounds contain open chain of carbon atoms in their molecules.
The terminal carbon atoms are completely free. They are not linked with each other. ये जो हमारे पास टर्मिनल पे कार्बन एटम्स होते हैं ये आपस में लिंक्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है, फ्री है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके टर्मिनल जो कार्बन एटम्स हैं दे आर completely free, they are not linked with each others, so these are called as open chain compounds. The chain is open, यहाँ से दोनों तरफ से टर्मिनल पॉइंट से कार्बन चेन्स ओपन है, ये आपस में लिंक्ड नहीं है, सो इट इज कॉल्ड एज ओपन चेन कंपाउंड। क्लास अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन की जो एक क्लास है अल्केन, उसकी एग्जांपल दी गई है प्रोपेन। प्रोपेन मीन 3 कार्बन एटम्स, जिसमें उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो तीनों कार्बन एटम्स हैं वो आपस में एक सीरीज में लिंक्ड है आपस में, और आपस में एक सीरीज में लिंक्ड होते हुए एक स्ट्रेट चेन जो है वो बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी की एग्जांपल की बात करें ओपन चेन की, तो हमारे पास पेंटेन 5 कार्बन पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, पेंटेन हाइड्रोकार्बन, अल्केन फैमिली से इसका ताल्लुक है। अब पांचों कार्बन आपस में एक स्ट्रेट चेन में जो है वो आपस में लिंक्ड है, यानी और जो टर्मिनल पे हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप है ये आपस में लिंक्ड नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। और इसकी नेक्स्ट एग्जांपल जो अदर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, इसमें एसिटिक एसिड है, इसके भी जो कार्बन है वो आपस में लिंक्ड नहीं है। क्लास हम लोगों ने स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स से रेलिवेंट पढ़ लिया है पीछे भी एग्जांपल। यहाँ पर इसकी फर्दर एक एग्जांपल है प्रोपीन। तो प्रोपीन जो है वो हाइड्रोकार्बन की क्लास है, अल्केन अल्कीन क्लास का एक मेंबर है, थर्ड मेंबर, सेकंड मेंबर सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, अल्कीन, यानी अल्कीन वो कंपाउंड से जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी आपस में स्ट्रेट चेन के जरिए जुड़े होते हैं। इसी तरह जो अल्काइंस है, कोई भी अल्काइंस का मेंबर की बात कर लें, जब वो आपस में स्ट्रेट चेन के जरिए जुड़े होंगे यानी आपस में सीरीज में लिंक्ड होंगे तमाम कार्बन एटम्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। Next, if we talk about the branch chain compounds, the carbon skeleton is in the form of branch chain, यानी स्ट्रेट चेन के साथ साथ इनके ऊपर ब्रांचिंग भी होती है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है इसकी आइसोब्यूटाइलीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये अगर इसको जस्ट हम यहाँ तक कंसीडर करें तो अल्कीन था, मगर इसकी जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो गई हैं अल्काइल ग्रुप से। अब हम देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर क्या आ गई, ब्रांचेस। तो इस तरह से जब हमारे पास स्ट्रेट चेन के साथ साथ उस पर ब्रांचेस भी मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। क्लास अगर हम ब्रांच चेन की फर्दर एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो हमारे पास है आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट चेन के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की जो सॉरी मिथाइल, अल्काइल ग्रुप का जो मिथाइल मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है मिथाइल, उसकी यहाँ पे हमारे पास ब्रांचिंग है, तो इस वजह से जो है ये ब्रांच चेन्स बन जाएगा। दीज आर इंक्लूड ब्रांच चेन्स कंपाउंड लाइक आइसो और नियोपेंटेन। Class now we will discuss the second major class of the organic compounds in which the organic compound is classified. Second major class of organic compound is cyclic or closed chain compounds. Class जैसा कि नेम से जाहिर है, साइक्लिक मीन कि कार्बन एटम्स आपस में एक साइकिल में लिंक्ड होंगे, और हम इसको क्लोज चेन्स भी कहते हैं। मीन जो कार्बन एटम्स हैं इनके जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो आपस में लिंक्ड होंगी। जब जो टर्मिनल वाली कार्बन है वो आपस में लिंक्ड होंगी तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोज्ड चेन। तो हम इसको ये कह सकते हैं क्लोज चेन है या फिर वो साइकिल स्ट्रक्चर है। तो इस लिहाज से हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं तो हम कहते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। They are marked by the presence of one or more closed chains or ring of atoms in their structure. यहाँ पर हम ये बताती चलूँ आपको कि इनके में जो है वो क्लोज चेन्स होगी, वो वन भी हो सकती है और वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, यानी वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा क्लोज चेन्स भी हो सकती है, या रिंग ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं इनके स्ट्रक्चर में, डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर atom apart from carbon
in the constituents of the ring, they are further classified as. Class, we are discussing about the second class in which the organic compound is classified is cyclic or closed chain compounds. Cyclic, as its name effect means, the organic compounds when in which the carbon atoms are linked in cycle, it is known as cyclic. Or closed chain compounds means if the terminal carbon atoms are linked to each other, they will form the closed chains. Mean if terminal carbon atoms are joined with each other, they will not open, they will form the closed chain compounds. So we classify the organic compound into cyclic or closed chain compounds. They are marked by the presence of one or more closed chains. Closed chains इसमें हो सकती हैं और रिंग ऑफ एटम्स हो सकते हैं इनके स्ट्रक्चर में. अब यहाँ पे जो चेन्स है वो हमारे पास वन भी हो सकती है और मोर क्लोज चेन्स भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर there is the presence of any other atom apart from carbon in the constitution of the ring. They are further classified as. कॉन्स्टिट्यूशन मीन होता है सब्सटीट्यूशन, यानी अगर हम कार्बन के अलावा कोई और एटम रिंग में मौजूद है तो उस लिहाज से बात कर रहे हैं कि अगर कार्बन या उसके अलावा कोई एटम मौजूद है रिंग में तो हम उसके लिहाज से जो हमारे पास साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं हम उनको नेक्स्ट टू क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं या इसको क्लासीफाई करते हैं. तो फर्स्ट क्लास है हमारे पास होमोसाइक्लिक और इसको हम क्लास कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब हम इनको डिटेल से वन बाय वन देखेंगे कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं. क्लास सबसे पहले हम डिटेल देखेंगे होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की. होमोसाइक्लिक, होमो मीन सेम, साइक्लिक मीन रिंग स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर. यहाँ पर होमोसाइक्लिक का मतलब ये है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट साइक्लिक हो और होमो मीन एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो वो साइकिल, तो उसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं. और क्लास हम इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. कार्बो मीन होता है कार्बन. अगर हमारा जो साइकिल है वो जस्ट कार्बन एटम से मिलकर बना होता है तो हम इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. The rings in these compounds are entirely made up of carbon atoms. अगर पूरी की पूरी रिंग कार्बन एटम से मिलकर बनी है तो हम ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. नो अदर एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग स्केलेटन. दूसरा कोई भी एटम जो है वो रिंग स्केलेटन में मौजूद नहीं होगा. किस केस में? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में. अब अगर हम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें, दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस. हम इन होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी दो मजीद क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. Class, now we will discuss the detail of alicyclic compounds. Their name is attributed to their resemblance to aliphatic compounds in their properties. एलिसाइक्लिक का वर्ड जो एली है ये एलिफेटिक से डिराइव हुआ है और साइक्लिक मीन साइकिल कंपाउंड्स. तो अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एलिफेटिक कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स की भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. द कंपाउंड्स दैट इज बोथ एलिफेटिक एंड साइक्लिक इज नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड. अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है साइक्लोप्रोपेन. साइकिल मीन देखें अभी इन्होंने एक साइकिल बनाया हुआ है, ठीक है. प्रोपेन मीन ऐसा साइकिल जिसमें 3 कार्बन हों, ठीक है. साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन होंगी, साइक्लोपेंटेन 5 एंड साइक्लोहेक्सेन एक ऐसा साइकिल जिसमें 6 कार्बन होंगे. अब ये आपको ज्योमेट्री याद होगी पेंटागोनल. ये पेंटागोनल से इसकी ज्योमेट्री जो है वो रिजेंबल करती है जिसमें जो है वो 5 कॉर्नर वाली हो, ठीक है. साइक्लोहेक्सेन यानी हेक्सागोनल से निकला है जिसमें 6 कॉर्नर्स होते हैं. उसी नाम से कि एक साइकिल बना रहे हैं साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन.
क्लास अब हम नेक्स्ट जो साइक्लिक कंपाउंड होमो कंपाउंड्स या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्लास जो है सब क्लास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एरोमेटिक कंपाउंड्स। दीज आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एक तो ये साइक्लिक इनका स्ट्रक्चर है और दूसरा ये कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। दे derives their name from the Greek word aroma। ग्रीक वर्ड एरोमा से हमने वर्ड जो है वो एरोमेटिक डिराइव किया है, विच मीन्स फ्रेग्रेंस स्मेल। फ्रेग्रेंस खुशबू को कहते हैं। इसकी खुशबू होती थी इन कंपाउंड्स की, इस वजह से इन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बेयर्स अ प्लेजेंट स्मेल। एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक्चुअली इसमें जैसे कि बेंजीन की एग्जांपल है, हम ऑनवर्ड आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो हमारे पास है वो कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल अल्टरनेटिव 3 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं, इस वजह से हम इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी नेक्स्ट 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड सेकंड क्लास इज नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। We define the benzoid aromatic compounds are the compound that contain at least one benzene ring in their structure is known as benzoid aromatic compounds। aromatic compounds ऐसे compounds होते हैं जिनमें कम से कम एक benzene ring हो, ठीक है। one or more, एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, but at least one benzene ring if present in a compound, then this compound will be known as benzoid aromatic compound। These benzene ring can be fused, वो आपस में fuse भी हो सकती है, और can be isolated as well as their derivatives। और जो बेंजीन रिंग है इसके जो डेरिवेटिव्स हैं हम उनको भी benzoid aromatic compounds में स्टडी करते हैं। Depending upon the number of benzene rings that are fused together in their structure, they can be further classified as monocyclic, बाईसाइक्लिक एंड ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग आपस में एक से ज्यादा बेंजीन रिंग, जैसे यहाँ पे हमें ये बेंजीन रिंग नजर आ रही है, जब एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज का मतलब जुड़ जाना, जुड़ेंगी तो उससे तरह के जो स्ट्रक्चर्स आएंगे हम उनको जो है मोनोसाइक्लिक अगर एक बेंजीन रिंग है, बाईसाइक्लिक अगर 2 बेंजीन रिंग है, ट्राईसाइक्लिक अगर हमारे पास 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज है तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राईसाइक्लिक। तो हम इसको मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक में मजीद क्लासीफाई करते हैं। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग 1 होगी तो मोनोसाइक्लिक, 2 होंगे तो बाईसाइक्लिक और 3 होंगे तो ट्राईसाइक्लिक। क्लास नाउ विल डिस्कस the subclasses of aromatic compounds। First one was benzoid aromatic compounds and second is non-benzoid aromatic compounds। They are non-benzoid aromatic compounds, as its name reflects that non-benzoid mean absence of benzene ring. So we say that they are characterized by the presence of a single benzene ring to which the other groups are attached। These are like टॉलीन। टॉलीन में हमारे पास जो है वो एक मिथाइल ग्रुप होता है, जब बेंजीन के साथ हमारे पास एक मिथाइल होगा तो उसको हम टॉलीन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर 2 मिथाइल हों, ये हमारे पास पोजीशन, हम इसको चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो पोजीशन होती है ये ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये ऑर्थो पर मौजूद है और 2 हमारे पास टॉलीन है और मिथाइल ग्रुप है जिसको हम जाइलीन कहते हैं। अगर हमारे पास मेटा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल वैसे ग्रुप हों तो हम इसको मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल जो है वो डेरिवेटिव्स की एनालिन है। Last now we'll discuss the examples of bicyclic and tricyclic compounds। As its name reflects that bicyclic mean बाई मीन 2, साइक्लिक मीन साइकिल्स। अगर बेंजीन की जो 2 रिंग्स है वो आपस में फ्यूज होंगी तो हम ऐसे कंपाउंड्स को बाईसाइक्लिक कहते हैं। और ट्राईसाइक्लिक मीन, ट्राई का मीन होता है 3, साइक्लिक मीन रिंग स्ट्रक्चर। अगर बेंजीन के 3 रिंग जो है वो आपस में फ्यूज होंगे तो हम उनको ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 or more rings in their structure, 2 or more benzene rings in their structure। एग्जाम्पल इंक्लूड नैप्थलीन। अगर हम नैप्थलीन की बात करें इसमें 2 बेंजीन रिंग जो है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं
एट 1-2 पोजीशन पर। अगर हम पेनेंथ्रीन की क्लास हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल्स की और बाईसाइक्लिक एंड ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स की। नेफ्थलीन की हमने बात की कि अगर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन है तो हम इसको नेफ्थलीन कहते हैं, और अगर हमारे पास 3 रिंग ज्वाइन है तो फेनेंथ्रीन। और अगर इसी तरह 3 ज्वाइन है मगर यहाँ पर पोजीशन चेंज है, ये 1-2 यहाँ पर इस तरह ये इसके और 2 पोजीशन पे, इसी तरह अगर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में या सीरीज में जुड़ी हुई तो हम इसको एंथ्रासीन कहते हैं। अब नेफ्थलीन हमारे पास एग्जांपल है बाईसाइक्लिक की, और फेनेंथ्रीन और एंथ्रासीन जो है वो हमारे पास एग्जांपल है ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की। लास्ट अब हम बात करेंगे नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट कंटेन अदर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स इन प्लेस ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अलावा अगर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स मौजूद होंगी तो हम इनको क्या कहते हैं, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास आ जाती है एजोलीन। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है वो कार्बन एटम मौजूद हैं, और ये 5, तो इसको क्या कहते हैं, एजोलीन। और यहाँ पे हमारे पास है प्रोपालोन। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, यानी जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं बल्कि एक हाईली अनसैचुरेटेड रिंग जो है वो मौजूद है। क्लास अब हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेट्रो मीन होता है डिफरेंट, साइक्लिक मीन साइकिल स्ट्रक्चर। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका साइकिल में जस्ट कार्बन एटम नहीं मौजूद होगा बल्कि कार्बन के अलावा और भी एटम मौजूद होंगे रिंग बनाने में, रिंग फॉर्मेशन में, यानी कार्बन एटम के अलावा अगर किसी कोई और एटम मौजूद है किसी रिंग स्ट्रक्चर में तो हम उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। When one or more heteroatoms such as oxygen, nitrogen, sulfur, boron, silicon are present in the ring, such compounds are known as heterocyclic compounds. हम इनको heterocyclic compounds कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा था होमोसाइक्लिक, और हमने ये देखा था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एक साइकिल है या रिंग स्ट्रक्चर वो जस्ट एक जैसे एटम या इवन की हमने कहा था कि कार्बन एटम से मिलकर बने तो उसको हमने कहा था कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मीन कार्बन के अलावा अगर कार्बन जो है वो रिप्लेस हो गई है किसी और एटम के साथ, कार्बन भी मौजूद है और उसके अलावा भी अगर एटम मौजूद हैं जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह शामिल हैं तो हम उन कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हम इसको भी हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं दो क्लासेस में। फर्स्ट क्लास जो है वो हमारे पास है एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकंड इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक होता है, और ये एलिफेटिक और साइक्लिक स्ट्रक्चर के दरमियान में इनकी खुसूसियत होती है। अब अगर इनकी बात करें, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर हेट्रोएटम्स इन देयर रिंग्स। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 कार्बन है और इसमें यहाँ पर एक हमारे पास ऑक्सीजन कनेक्ट हो गई तो हम इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसी तरह अगर हमारे पास 6 है और एक जो कार्बन है वो रिप्लेस होगी ऑक्सीजन से तो हम इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोपाइरेन। और इसी तरह अगर दो कार्बन जो है वो रिप्लेस हुई है हमारे पास ऑक्सीजन एटम से तो 1,4 डाईऑक्सेन। ये एग्जांपल है हमारे पास एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, यानी एलिसाइक्लिक रिंग में अगर कार्बन एटम के अलावा कोई एटम आ गया है तो हम इसको क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट क्लास की तो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हम देखेंगे कि अगर एरोमेटिक रिंग में, यानी अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से थे जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग थी, हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन at least one benzene ring in their structure. And if we say that in the benzene ring, if there is a replacement of carbon atom by any other atom, then it will be known as aromatic heterocyclic compounds. Aromatic heterocyclic compounds that contain one or more heteroatoms in their ring skeleton. And if we talk about now about the examples of the aromatic heterocyclic compounds, furane, थायोफीन, अगर हमारे पास सल्फर होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, थायोफीन। इसमें 5 जो है 1, 2, 3, 4 जो है वो
कार्बन और एक जो है वो हमारे पास सल्फर एटम होगा, 5 पेंटागोनल की फॉर्म में ही होगा। इसी तरह पाइरोल, ठीक है, NH होगा अगर हमारे पास, पिरिडीन, ठीक है, नेक्स्ट ऑक्साजाइन, थायाजीन, प्राइमाडीन एंड पिप्राजीन, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। लास्ट नेक्स्ट इस स्लाइड्स में मैंने शामिल किया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड वर्सेस एरोमेटिक कंपाउंड्स के, इनमें क्या डिफरेंस है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस के लिए आ सकता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंपाउंड, इस कंपाउंड एक कंपाउंड है दैट इज बोथ एलिफेटिक एंड साइक्लिक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी हम लोग अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एली का वर्ड निकला है एलिफेटिक से, और साइक्लिक मीन जो साइक्लिक कंपाउंड्स है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है इन बिटवीन एलिफेटिक एंड साइक्लिक, एंड वी आल्सो से दैट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव द प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबल विद बोथ एलिफेटिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स. Aromatic compounds are organic compounds composed of carbon and hydrogen atoms arranged in ring structure with delocalized pi electron. क्योंकि इसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिंगल अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो डबल बॉन्ड उनमें क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपस में क्योंकि 3 रिंग में है तो इसलिए वो आपस में डीलोकलाइज हो जाते हैं। डू नॉट हैव अ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स, तो एलिसाइक्लिक में ऐसा डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड ही नहीं होता, तो इस वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स नहीं होते। और अगर हम वैसे भी हम बात कर लें ना एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी, कि हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी अगर हम बात करें तो हमारे पास इसकी 3 फर्दर क्लासिफिकेशन है। उसमें साइक्लोअल्केन्स आ जाते हैं, साइक्लोअल्कीन्स और साइक्लो जो है अल्काइंस आ जाते हैं। बट याद रखना है कि इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होती। वहाँ हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इसमें जो है वो डीलोकलाइजेशन होती है। इसी वजह से जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। हम चैप्टर नंबर 9 में इनकी डिटेल के साथ स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स को देखेंगे। नेक्स्ट है कैन आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। मैंने अभी आपको बताया कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं अगर उनका ताल्लुक जब वो साइक्लोअल्केन से है, और अगर उनका ताल्लुक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मीन ये है कि अगर ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनका ताल्लुक जो है वो साइक्लोअल्केन या साइक्लोअल्काइंस के साथ होगा तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। एसेंशियली सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सॉरी बेटा ये यहाँ पे अनसैचुरेटेड आना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव 3 सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये लाजमन है कि ये अनसैचुरेटेड होंगे। जबकि एलिसाइक्लिक जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। हैव नो स्पेसिफिक एरोमा, इसका कोई खास एरोमा मीन होता है फ्रेग्रेंस स्मेल, इसकी कोई खास खुशबू नहीं होती। हैव एन एरोमा, इनकी खास फ्रेग्रेंस होती है। स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स, वो केमिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि आया कि उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कौन सी वो क्लास है, तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ देयर रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, डीलोकलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्लास इसी तरह आपने नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें शामिल करना है, ऐड करना है, वो इसकी एग्जांपल ऐड करनी। आपने एलिसाइक्लिक जो है वो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे आपने बेंजीन सिंपल या टॉलिन या जाइलिन उसको जो है वो इंक्लूड कर लेना। इसी तरह आपको डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस आएंगी, उनमें आपने डेफिनेशंस और उसकी एग्जांपल जो है वो कैरी करनी है। इसमें एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एग्जांपल को करना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास ये तो था आज का हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको पढ़ें, इसको देखें, इसको समझें और इसको याद करें। ठीक है, हम नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।